So I've already shared you the book as well और syllabus भी. Comparing the masses of substance, ये थोड़ा सा आपके पुराने एक्सेल आईजीसीएससी वाली बेसिक्स हैं जो हम इसको बहुत तेज कवर करेंगे क्योंकि दिस इज समथिंग दैट यू ऑलरेडी मोस्ट ऑफ इट 80% आपको पता है. We have a thing known as relative atomic mass, which is the mass of an atom. For example, carbon है, carbon has a relative atomic mass of 12, oxygen हो गया तो उसका 16 होगा. And scientists could not weigh individual atoms, तो उन्होंने एक term use करना शुरू कर दी as relative atomic mass. And they saw that the one with the smallest mass was actually hydrogen. So they fixed it as one. They fixed the mass of hydrogen as one. And then they saw that just atoms of silicon had the mass double of nitrogen atom. ठीक है, इफ नाइट्रोजन वाज 14 दे केम टू द कंक्लूजन कि फिर सिलिकॉन आपके पास 28 हो जाएगा बिकॉज इट हैड द डबल द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम्स. एट फर्स्ट मोस्टली होल नंबर्स वर यूज, जैसे आपने अपने एडेक्सल आईजीसीएससी के पीरियोडिक में देखे हैं होल नंबर्स यूज है कि नाइट्रोजन 14 है, सिलिकॉन 28 है. लेकिन अब आप अपने ए लेवल वाले पीरियोडिक टेबल के अंदर देखोगे दैट ऑल ऑफ द रिलेटिव एटॉमिक masses आर देयर इन डेसिमल्स. गॉट इट? They are the ओके. approximate values and they are all in decimals. So, how do we define the definition of a relative atomic mass? It is the weight mean average mass of an atom compared to the 112th mass of an atom of carbon 12. And it is often useful to remember this expression that the mean mass of an atom of an element compared to 112th mass of an atom of carbon 12. Jabki if we talk about relative molecular mass, this would be obviously for molecules such as carbon dioxide, and you have to add the individual ARs, AR of carbon plus relative atomic mass of oxygen. That will give you the total molecular masses, which is only the mass of molecules. For example, ये तो सारे ARs given है आपको. You are given the AR of hydrogen, you are given the AR of carbon, oxygen, sulfur, copper. But if they are all going to form some molecules, for example, अगर आपको relative molecular mass आ जाए कार्बन डाइऑक्साइड का, it would be 44. सल्फ्यूरिक एसिड के सारे relative atomic masses अगर आप ऐड करोगे, you'll get the MR, which is 98.1, and so on. We call it the relative molecular mass. So the relative formula mass should also be used for compounds such as giant structures as well. जैसे सोडियम क्लोराइड हो गए, इनके relative formula masses आ जाएंगे. Why? Because they are a relative formula. उन्होंने एक ionic formula बनाया हुआ है made from a metal and a non-metal. So another way around the problem in work example 3 is to term it molar mass as well. आप MR को you can also call it the molar mass that we are going to use a lot in your stoichiometrical equations as well. Avogadro's constant was is another thing, and it's kind of a scaling up factor for different atoms, molecules and ions, जो कि बहुत से इसने factors बनाए जैसे grams हो गए, ये AMU का constant हो गया. So you should remember the value of the Avogadro's constant, which is approximately 6 into 10 to the power 23 per mole. And it is easier to write this number using the standard form as well. So 1 mole of anything would have 6 into 10 to the power 23 atoms या molecule. जैसे अगर 4 ग्राम ऑफ हीलियम है, 4 ग्राम ऑफ हीलियम का मतलब क्या है? 4 डिवाइड बाय हीलियम का MR, वो भी 4 होता है. मतलब हीलियम हैज यहाँ पे क्या है? 1 मोल. और कोई भी चीज 1 मोल होगी, इट विल हैव एग्जैक्टली 6.02 इंटू 10 to the power 23 एटम्स और particles. So how do you define molar mass? It is the mass per mole of a substance and it has the symbol M and the units gram per mole. Avogadro's constant क्या है? 6.02 into 10 to the power 23. It is the number of particles in 1 mole of a substance. Got it? जी. So if you want to find out that how many molecules are there in 1.25 grams of water, तो आपको सबसे पहले निकालने पड़ेंगे मोल्स. मोल्स आप निकालोगे mass divided by the MR of water, which is 18. Once you have the moles, moles को multiply कर दो अपने Avogadro constant से, which is 6.02 into 10 to the power 23, and then you can find the total number of molecules or the total number of atoms or the total number of particles in any given compound. Is it clear? जी. Mole, on the other hand, is the amount of substance that contains exactly the same number of particles as the number of carbon atoms in an exactly 12 gram of carbon 12 isotope. This definition is not easy to understand, but आहिस्ता आहिस्ता explain होता है कि यार ये इतने अलग से unit क्यों है? Because every particle is very tiny. There are millions and billions of, let's say, even compound silicon dioxide, your particles, there are a lot in numbers. और उनको एक test tube पे measure करना industrial
स्केल में मेजर करना, आप उनको ग्राम्स में तो मेजर कर नहीं सकते. एवरीथिंग हैज इट्स ओन यूनिट. टेम्परेचर हैज केल्विन, सेल्सियस, you have distance के लिए kilometers and everything. So amount of substance के लिए भी fixed on to the moles. और moles भी आपको हमेशा कैसे निकलेगा? when you have everything in relative terms, whether it's the relative mass, relative molecular mass and everything. So यहाँ से हमारे पास एक moles का बहुत important formula आता है, that we already discussed in the previous lecture as well, that amount of substance in moles is equal to the mass in grams divided by the molar mass. So mass over mr is the formula. और अगर आपने mass निकालना होगा, you can multiply the number of moles multiplied by the mr as well. For example, what is the amount of substance in 6.5 gram of sodium chloride? So the mass is 6.51 and the mr of sodium chloride is, sodium is 23 plus chlorine is 35.5. So 6.51 divided by 58.5, आपके पास moles आ जाएंगे 0.111 moles. Clear? देन वी जी। हैव अदर एग्जांपल्स एज वेल. अब आपको यहाँ पे मोल्स गिवन है, मास भी गिवन है, आपको मोलर मास निकालना है. तो मोलर मास क्या हो जाएगा? एम आर इज इक्वल टू मास ओवर दी moles. So these formulas can be switched up. You can find the mass as well, the molar mass as well, and just the moles as well from these different formulas. Now, stoichiometrical equations, when you are talking about reacting masses, we have two sides, reactants, and we know that they all convert into products. You can use the ideas from previous topics about the amounts of substance and the equations to do calculations involving the masses of reactants and product in the equation. A balanced equation for a reaction shows the same number of each species, atoms, molecules, and ions on both sides of the equation. It is also balanced for the masses of each species. और हमें सबसे पहले अगर हम एक equation ले for the manufacture of ammonia, which we also call it as the Haber's process. N2 plus 3H2 forms 2NH3. यहाँ से मेरे पास जो मोलर रेशियो आई वो है 1 रेशियो 3 moles of hydrogen रेशियो 2 moles of ammonia being produced. This is what we call the molar ratio, कि 1 mole of N2 react कर रहा है 3 mole of hydrogen के साथ to form 2 mole of NH3. Now this statement can be made about the masses involved as well. For example, 28 gram of N2 reacts with 6 gram of H2 to form 34 gram of NH3. यही आपको इस मैथ्स आ जाएगा. इन मोल्स को यूज करके यू कैन मल्टीप्लाई दीज मोल्स विद ऑल ऑफ देयर एमआरस, तो आपके पास क्या आ जाएगा? देयर मैसेज. लेकिन रिमेंबर, आप डायरेक्टली मोल रेशियो से यू कैन नॉट कन्वर्ट टू मास रेशियो. मोल रेशियो कैन बी यूज्ड इन फाइंडिंग द वॉल्यूम रेशियो. वॉल्यूम रेशियो के तो वो हेल्प आपके पास कर ही देता है. सो इसके अलावा इफ यू लुक एट सम अदर एग्जांपल्स, ये एक एग्जांपल है, देख लेते हैं. द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इज 2NH3 plus H2SO4 forms ammonium sulfate. What mass of ammonia is needed to form 100 grams of ammonium sulfate? सबसे पहले तो what you should do, you can find the moles of ammonium sulfate. आपको ammonium sulfate का mass दिया हुआ है 100. इसको आप डिवाइड कर दें दी एम आर ऑफ अमोनियम सल्फेट से, जो कि निकलेगा 132.1. एमोनियम NH4 हो गया प्लस 2SO4 आ जाएगा 132.1. इधर से आप मोल्स निकालेंगे ऑफ NH2SO4 विच आर गोइंग टू बी 0.757. अब आप दोनों में रेशो देखो कि NH3 और अमोनियम सल्फेट में रेशो क्या है? 2:1 है. तो अगर इसके मोल 0.757 है, देन अमोनिया वुड हैव द एग्जैक्ट डबल मोल्स. तो यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई 0.757 इंटू 2 एंड फाइंड द मोल्स ऑफ अमोनिया, एंड फाइनली मल्टीप्लाई द मोल्स ऑफ अमोनिया विद इट्स एमआर. जो आपके पास अमोनिया का एमआर होता है दैट इज 14 प्लस 3 टाइम्स हाइड्रोजन विच इज 17. तो नंबर ऑफ मोल्स को आप मल्टीप्लाई कर दो 17 से, यू विल फाइंड द मास ऑफ अमोनिया. इज इट क्लियर? जी। गुड. फिर हमने एक और चीज डिस्कस की थी, द यील्ड ऑफ द रिएक्शन. कैन यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म द यील्ड? यील्ड। यस. यील्ड से क्या समझ आता है? व्हाट डज यील्ड मीन? कितना वो कलेक्ट कर प्रोडक्ट. सकते हैं बेसिकली, और द हाँ, यील्ड इज द प्रोडक्ट प्रोडक्ट कितना ऑफ द बनता है। रिएक्शन. अब आपके पास कुछ दो किस्म की यील्ड होती है. वन इज नोन एज द थियोरेटिकल यील्ड एंड द अदर इज नोन एज द एक्चुअल यील्ड. और एक्चुअल डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल यील्ड इनटू 100 करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? परसेंटेज यील्ड. एक्चुअल क्या है? जो आपने प्रिडिक्ट किया था यार ये आनी चाहिए है, लेकिन जब व्हेन यू कैरिड आउट द रिएक्शन आई क्या, और आपने सोचा क्या था, दोनों में फर्क होना चाहिए ना.
इन द लेबोरेटरी व्हेन यू आर मेकिंग अ प्रोडक्ट यू नेचुरली वांट टू ऑब्टेन एज मच ऑफ इट एज पॉसिबल। आपकी बड़ी उम्मीदें होती है यार इतना बनेगा। फ्रॉम द रिएक्टेंट यू स्टार्ट में आपको कि यार मैंने इतना रिएक्टेंट डाला है, प्रोडक्ट तो इतना आना ही आना चाहिए है। बट इंडस्ट्रीज में रिएक्शन बड़े लार्ज स्केल पे होते हैं और आपको कहीं ना कहीं लॉसेस भी होते हैं। सबकी कोशिश होती है टू प्रोड्यूस द मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्ट। सबको चाहिए कि सबकी यही कोशिश होती है कि हमारी यार यील्ड सबसे ज्यादा से ज्यादा हो। देर आर सम रीजंस व्हाई द mass ऑफ अ रिएक्शन प्रोडक्ट मे बी लेस देन द मैक्सिमम प्रोडक्ट। अब जो आपने सोचा होता प्रोडक्ट उससे कम क्यों आता है? पहला रीजन, रिएक्शन माइट बी रिवर्सिबल एंड सो may नॉट बी complete, or that there are some side reactions as well that are producing waste products, or the product may need to be purified। क्या पता जो प्रोडक्ट आया वो बिल्कुल रॉ फॉर्म में होगा। ठीक है, आप जब उसको प्योरीफाई करोगे और आपके पास जब वो प्योर में कन्वर्ट होगा तो उसका मास ऑलरेडी काफी कम हुआ होगा। सो वी नॉर्मली यूज द टर्म यील्ड विद अदर वर्ड जैसे कि theoretical, एक्चुअल एंड परसेंटेज यील्ड। theoretical and actual yield may be measured in grams, but in industry आप उनको kgs और tons के अंदर ही measure करते हैं। theoretical yield क्या होती है? We calculate the theoretical yield using the equation for the reaction, and we use a method that you are already familiar with from the previous topics as well, and it is always assumed that the reaction goes to completion। Let's say आपके पास copper carbonate है which is being decomposed into copper oxide and carbon dioxide। What is the theoretical yield of copper 2 oxide? आपने ये कॉपर टू ऑक्साइड की यील्ड निकालनी मतलब कि मास निकालना है, विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम 5.78 grams ऑफ कॉपर टू कार्बोनेट। आपको कॉपर टू कार्बोनेट का मास दिया विच इज 5.78। इसको आप डिवाइड कर दोगे किसके एमआर से? कॉपर टू कार्बोनेट के, जो कि होता है 123.5। तो आपके पास मोल्स आ जाएंगे 0.046 मोल्स ऑफ कॉपर टू कार्बोनेट। अब कॉपर टू कार्बोनेट और CuO के दरमियान 1:1 है, मतलब कि कॉपर ऑक्साइड वुड आल्सो हैव द सेम नंबर ऑफ मोल्स। तो आप इसको मल्टीप्लाई जब उसके एमआर से करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा, दिस इज व्हाट द डिजायर्ड प्रोडक्ट। ठीक है, ये आपका मास ऑफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट, दिस इज नोन एज द थियोरेटिकल यील्ड। समझ आ गई? जी। अब थियोरेटिकल यील्ड वो है जो यू आर गोइंग टू कैलकुलेट, जो आपको ऑलरेडी तरीका आता है, जो आपने स्टोइचियोमेट्री एंड मोल्स में पढ़ा है। और अब आप सोचोगे सर ये एक्चुअल यील्ड पर कहाँ है? एक्चुअल यील्ड विल बी गिवन टू यू इन द क्वेश्चन। फिर आप परसेंटेज यील्ड कैसे निकालोगे? एक्चुअल डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल मल्टीप्लाइड बाय 100 इज गोइंग टू गिव यू द एक्चुअल यील्ड। दिस इज द एक्चुअल mass obtained by weighing the product obtained, not by calculation। और ये आपको ऑलरेडी एग्जामिनर दे देगा, इट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। वहां आप फिर फॉर्मूला अप्लाई करोगे। वंस आपने theoretical yield that you have calculated yourself, you can find the percentage yield by using the formula actual yield multiplied by 100 divided by the theoretical yield will give you the percentage yield। क्या आपका डिजायर्ड, लेट्स से आपने सोचा था 50 बनेगा, बना कितना? 30। तो आप जब इसका वो निकालोगे, परसेंटेज निकालोगे, वो आएगा 60%। कॉल इट, गॉट इट? क्लियर हो गया व्हाट इज परसेंटेज यील्ड? जी। Good. So theoretical yield is the maximum possible mass of product in a reaction, assuming complete reaction and no losses. Actual yield is the actual mass obtained in a reaction, and percentage yield is the actual yield divided by the theoretical yield expressed as percentage. उसके बाद we have another topic known as atom economy. Can you tell me what is atom economy? द अमाउंट एटम इकोनॉमी होता है। भूल गए? नहीं, वो फॉर्मूला याद है, वो डिजायर्ड प्रोडक्ट, एमआर ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट ओवर एमआर ऑफ द रिएक्टेंस इनटू 100 फॉर एटम एफिशिएंसी। सो पिछले टॉपिक में वी लुक्ड एट एटम इकोनॉमी। परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन, जो कि कंपेयर करा था मास जी। ऑफ रिएक्टेंट्स टू द मास ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट में। वो प्रोडक्ट आपका एक्चुअल भी था, थियोरेटिकल भी था, एंड द क्लोजर द वैल्यू इज टू 100% बेटर द परसेंटेज यील्ड। बेहतर ही होगा। जिस इंडस्ट्री की जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा परसेंटेज आएगी, वो तो इंडस्ट्री बहुत अच्छी है कि यार आपने जो सोचा था आपको तो वही मिल रहा है। अ हायर परसेंटेज मीन्स दैट लेस ऑफ द स्टार्टिंग मटेरियल्स आर लॉस्ट और एंड अप एज अनवांटेड प्रोडक्ट्स। Percentage yield is an important factor to take into consideration when assessing the suitability of an industrial process. However, it is the only one, and other factors also include the availability of raw materials। क्या वो available है या नहीं? अगर हैं क्या पता they are very expensive, and what if you are not getting the required energy जो रिएक्शन को चलाने के लिए चाहिए? The quantity of energy needed is also affecting your percentage yield। So how does this atom economy work? Here, as an example of atom economy in action, there are two main processes in the manufacture of phosphoric acid. पहला है you add calcium phosphate to
सल्फ्यूरिक एसिड टू प्रोड्यूस phosphoric acid and calcium sulfate. उसके बाद you can also do the other way around, that is P4 phosphorus plus oxygen produces plus water produces phosphoric acid. तो ये दो मेन प्रोसेसेस हैं, या आप कैल्शियम फॉस्फेट को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा दें, या फिर आप तीन रॉ मटेरियल्स ले लें, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन एंड वाटर, आप उनको रिएक्ट करवा दें। दोनों प्रोसेसेस आर प्रोड्यूसिंग फॉस्फोरिक एसिड, और दोनों के कोई ना कोई एडवांटेजेस भी हैं एंड डिसएडवांटेजेस भी हैं। However, what you can see from these equations is that all of the atoms in the starting materials for process 2 end up in the desired product in process 1. Many of the atoms end up in second unwanted product as well, जैसे कि calcium sulfate है। And अब मसला ये है कि process 1 has a lower atom economy of process 2. How? प्रोडक्ट तो वही है, आपके पास प्रोडक्ट इधर भी फॉस्फोरिक एसिड है, यहाँ भी फॉस्फोरिक एसिड है। बट द थिंग इज कि आपके पास मे बी द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स और द एटम्स आर मोर इन प्रोसेस वन एज कंपेयर टू प्रोसेस टू। प्रोसेस टू में तो एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, एंड प्रोसेस वन में आप देखोगे दैट देयर आर टू हंड्रेड प्रोडक्ट्स परसेंट बीइंग इकोनॉमी प्रोड्यूस। है। तो तो याद हाँ। रखें, जब भी एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा होता है ना, उसकी एटम इकोनॉमी ज्यादा होती है, क्योंकि सारे जो रिएक्टेंट में एटम्स थे दे आर बीइंग प्रोड्यूस टू योर डिजायर्ड प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ पे कुछ साइड प्रोडक्ट भी तो बन रहे हैं, आपने बनाना फॉस्फोरिक एसिड था। प्रोसेस वन की लोअर एटम इकोनॉमी क्यों है? क्योंकि फॉस्फोरिक एसिड बनाते कैल्शियम सल्फेट एक एक्स्ट्रा चीज बनने लग गई साथ, ठीक है, बुरी नहीं है, वेस्ट नहीं है, लेकिन बनने लग गई। यहाँ प्रोसेस टू अच्छा नहीं है, आपको जो चाहिए था बस वही बन रहा है, सो इट हैज अ हायर एटम इकोनॉमी। सेकेंड प्रोसेस हैड मोर एटम इकोनॉमी। A chemist from USA, Barry Toast ने ये डेवलप किया था एटम इकोनॉमी का एज एन ऑल्टरनेटिव वे of assessing the chemical reactions, especially in industrial processes. He believed that it was important to consider how many atoms from the reactants end up in a desired product. कि आपने जो जो atoms reactant में रखे थे, how many of them are actually there in your desired product? कोई भी product नहीं, desired product। desired product आपका phosphoric acid था, याद रखो। So the expression we use to calculate the atom economy is atom economy is equal to the molar mass of the desired product divided by the sum of the molar masses of all products। ठीक है, तो आपका desired product क्या था? फॉस्फोरिक एसिड का, आप उसका एमआर देख लो, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपके जो सारे जो प्रोडक्ट्स थे, masses of all products। लेट्स से ऊपर आएगा सिर्फ कौन सा? सारे H3PO4। रिएक्टेंट्स नहीं थे? क्या चीज? सारे रिएक्टेंट्स नहीं थे? नहीं नहीं, वो भी आएगा, वो बताता हूँ, ठीक है। आपके पास ओके ओके। डिजायर्ड प्रोडक्ट की जो एटम इकोनॉमी, दैट इज द वन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू योर सिलेबस। डिजायर्ड प्रोडक्ट था फॉस्फोरिक एसिड, इसका एमआर जी डिवाइडेड बाय द एमआर ऑफ H3PO4 प्लस कैल्शियम सल्फेट। ये आपको बताएगी एटम इकोनॉमी, क्योंकि देखो रिएक्टेंट के निकालो वो भी तरीका है, ये देख लोगे तो आपको डिजायर्ड मिल जाएगा। क्या आपकी इकोनॉमी कितनी सही बरकरार रही? इकोनॉमी ज्यादा रही, कम हुई? कम या ज्यादा, आपने सही। वो फर्क देते हैं कि आपका जो डिजायर्ड प्रोडक्ट था वो टोटल एटम्स इन द प्रोडक्ट्स में से योर वन वाज only 32% of the whole product. So you can see that less than one सही। third of the mass of the starting materials ends up in the desired product, which does not look good. क्योंकि if the CaSO4 is a waste product, इसको dispose of करना पड़ेगा, तो लोग ज्यादातर क्या करते हैं फिर? they use the other process. Even if the percentage yield of process one was as high as 100%, लेकिन आपकी एटम इकोनॉमी तो यही है ना। हम प्रोडक्ट को नहीं देख रहे, हम्म, प्रोडक्ट तो आ गया, खुश हो, बहुत ज्यादा हो गया, आपको आपका पैसा ही वापस मिल गया, जी लेकिन बनी क्या चीज? आपको तो वो चाहिए नहीं था, पैसा तो वापस आ गया, रॉ मटेरियल यूज की, एनर्जी यूज की, प्रोडक्ट तो मिल गया, वाह, इंडस्ट्री अच्छी चल रही है। प्रोडक्ट देखो जाके क्या बना। आप कहीं ना कहीं चलो यूज तो कर लोगे कैल्शियम सल्फेट को, बट व्हाट अबाउट द फॉस्फोरिक एसिड दैट यू एक्चुअली वांटेड? सो वी कैन मेक सम जी। जनरलाइजेशंस अबाउट सर्टेन टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कि एडिशन रिएक्शंस जो हैं दे हैव 100% इकोनॉमी। कैसे? पानी के लिए क्या चाहिए? H2O2 ऐड करो, क्या बनेगा? H2O ही बनेगा। सिंपल एडिशन रिएक्शन है, 100% एटम इकोनॉमी। फिर एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की हमेशा लोअर एटम इकोनॉमी होगी। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज जब सब्स्टिट्यूट होगी, वो एज अ बाय प्रोडक्ट अलग तो करनी पड़ेगी। वो आपके पास जैसे जी ब्रोमीन वेस्ट अगर कहीं, प्रोडक्ट बनेगा कोई ना कुछ। एग्जैक्टली वो कहीं ना कहीं निकल के फिर कहीं तो आपने देना ना, कि यार मैं इसकी जगह ये लाया हूँ, तो वो जो आप उसकी जगह ये चीज ले आए हो वो आपका वेस्ट है। फिर कुछ मल्टीपल रिएक्शंस, मल्टी स्टेप्स इंजन रिएक्शंस के, एक से ज्यादा, जैसे आयरन की एक्सट्रैक्शन है, आयरन को प्रोड्यूस करना, या मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है, वो भी तो मल्टी स्टेप रिएक्शन है। लेकिन आप हेबर्स प्रोसेस देखो, मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, वो तो एक ही रिएक्शन है।
सो here you have some examples, ठीक है, यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो। सोडियम कार्बोनेट इज एन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल मैन्युफैक्चर्ड बाय सॉल्वर प्रोसेस। ये आपके पास इक्वेशन है। मैन्युफैक्चर ने स्टार्ट की 75 kg कैल्शियम कार्बोनेट से, और उसको सोडियम कार्बोनेट मिला 76.5 kg। कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड एंड द एटम इकोनॉमी, दोनों निकाल लें। सबसे पहले तो आप थियोरेटिकल यील्ड देखो। थियोरेटिकल यील्ड आपकी क्या आ जाएगी? 75 into 106। क्यों किया? MR वैल्यूज आर 100.14 कैल्शियम कार्बोनेट एंड 106 फॉर Na2CO3। सबसे पहले व्हाट यू कैन डू इज, आपको दिया हुआ है 75 kg कैल्शियम कार्बोनेट, इसको डिवाइड कर लो 100.1 से, तो आपके पास मोल्स आ जाएंगे किसके? कैल्शियम कार्बोनेट के। कैल्शियम कार्बोनेट और इसकी रेशो आप देखो क्या है, 1:1। तो जितने इसके मोल्स होंगे उतने ही इसके होंगे। तो जो मोल्स आपके निकले उनको आप मल्टीप्लाई कर दो किसके? MR से? सोडियम कार्बोनेट के। गॉट इट? जी। तो उन्होंने वो काम जरा डायरेक्ट किया हुआ, इसलिए आपको यहाँ समझ जाएगी, मैंने बता दिया। उन्होंने ये देखो डायरेक्ट किए, 75 डिवाइडेड बाय 100.1, साथ ही आंसर को मल्टीप्लाइड बाय दी 106, दूसरे का MR। MR आपको दिया होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, उससे आपने मोल्स निकाले। ठीक है, आपको मास भी दिया हुआ था इसका, और आपको मोल्स आपने निकाली। फिर आपने मोल्स निकालने के लिए मल्टीप्लाई किया विद द MR ऑफ Na2CO3। वहां आपने देखा कि आपके पास परसेंटेज यील्ड आई है 96.3। अब हम निकालेंगे एटम इकोनॉमी। ठीक है, 96.3 का क्या मतलब है? 96.3 का मतलब है कि आपने सोचा था कि आपके पास कितना सोडियम कार्बोनेट आएगा? 76.5, लेकिन आया कितना? इसका 96.3% आया इन एक्चुअल। गॉट इट? जी। गुड। लेकिन परसेंटेज यील्ड हम हमेशा देते हैं, मतलब हम कैलकुलेट नहीं करते परसेंटेज यील्ड। देखो ये थ्योरेटिकल यील्ड आपके पास क्या निकली? 79.4। नहीं नहीं, वो परसेंटेज नहीं, वो परसेंटेज यील्ड तो वो ही देते हैं। परसेंटेज यील्ड आपने निकालनी है, आपको वो देंगे नहीं एक्चुअल नहीं यील्ड जो नहीं, वो आपने दूसरा सोचा वाला था। क्या था वो, हाँ एक्टिव यील्ड वाला, सॉरी। वो क्या है एक्चुअल आपको यील्ड दिया बन हुआ रहा है था। जो आपने सोचा था कि जी। कितना सोडियम कार्बोनेट जी। बनेगा? 76.5। एक्चुअल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल यील्ड जो आपने निकाला, कि असल में तो इतना बन रहा है सही है, मेरी तो एटम स्टोइशियोमेट्रिक इकोनॉमी। इक्वेशन से। गॉट इट? सही है। सही है। और फिर एटम इकोनॉमी कैसे निकालोगे? 106 जो आपने डिजायर किया था, डिजायर आपका क्या MR था? Na2CO3। Na2CO3 था, CaCl2 तो नहीं था ना? ये डिनोमिनेटर में आएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? MR ऑफ Na2CO3 डिवाइडेड बाय द MR ऑफ Na2CO3 प्लस CaCl2 इंटू 100। ये आपके पास क्या निकल आएगी इस रिएक्शन की? एटम इकोनॉमी। गॉट इट? जी। गुड। And that is the end of topic 1C.